اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از لیسن نمبر 24 آف دس سیریز اور ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج کے اس لیسن میں ہم فعل مضارع کے اعرابی حالتوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. دیکھیے ایکچولی حروف ناصبۃ المضارع و جازمۃ المضارع اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. یہ ٹرمز کیا ہیں ان کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کے رولز بھی سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. اسم کی طرح فعل میں بھی اعرابی تبدیلی کرنے والی کچھ حروف ہوتے ہیں. دیکھیے آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ اسم کے اندر کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں اور کچھ ایسے حروف بھی ہوتے ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے کے جاتے ہیں. فعل میں بھی ایسا ہوتا ہے جو فعل مضارع کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب یا حالت جزم میں لے کے آتے ہیں. یعنی اوریجنل سٹیٹ جو رف سٹیٹ ہے اس سے نکال کے نصب سٹیٹ اور اینڈ جو سائلنٹ سٹیٹ جزم والی سٹیٹ ہوتی ہے اس کے اندر لے کے آتے ہیں. فعل ماضی ناقابل تبدیل ہوتا ہے یعنی پاسٹ ٹینس کے اندر کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوتی. اس میں اعرابی تبدیلیاں نہیں ہوتی. اس کے اندر صرف ایک ہی حالت رہتی ہے جو کہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے. اسم کی دوسری تبدیل شدہ حالت کو حالت جر جبکہ فعل کو حالت جزم کہا جاتا ہے. یہاں پر دوسری حالت یہ اسم کی جو دوسری تبدیل شدہ حالت ہے وہ حالت یہاں پر جز ہو گیا ہے. یہ حالت جر ہے ایکچولی, لیکن فعل کی جو دوسری تبدیل شدہ حالت ہے وہ حالت جزم ہوتی ہے. یعنی اسم میں حالت جزم اور فعل میں حالت جر نہیں ہوتی. فعل مضارع کے اعرابی حالتوں کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یفعل, یفعل, یفعل. اب دیکھیے پہلا والا ہے رفع سٹیٹ کے اندر, دوسرا ہے نصب سٹیٹ کے اندر, تیسرا ہے جزم سٹیٹ کے اندر, کیونکہ لاسٹ میں کوئی علامت نہیں آ رہی ہے. یہاں پر اس کے اندر پھر ورب کے اندر وہ جر نہیں آتا, یہاں پر جر کے بدلے جزم والا آتا ہے. حالت رفع, حالت نصب, حالت جزم. اب فعل جو ہے ماضی جو ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے, فکسڈ ہوتا ہے, اس کے اندر چینجنگ نہیں ہوتی. مضارع جو ہوتا ہے معرب ہوتا ہے, اس کے اندر ساری چینجنگ ہوتی ہے. یہ چینجنگ کیسے ہوتی ہے یہی ہم اس لیسن میں دیکھنے والے ہیں. اب دیکھیے حروف ناصبۃ المضارع کون سے ایسے حروف ہیں جو ناصبۃ المضارع ہیں. یہ تعداد میں 6 ہیں. یعنی جو ورب کو حالت رفع سے لے کر اوریجنل ڈیفالٹ حالت سے لے کر حالت نصب کی طرف لے کے آتے ہیں. ان, لن, کائی, لی, کائی, اذن, حتی, یہ وہ حروف ہے. اب ان کا مینس ہے کہ لن ہرگز نہیں, کائی تاکہ, لی یا کائی تاکہ, اذن تب, حتی یہاں تک, جے یہاں تک کہ. اب ان کا یوز جو ہوا ہے امرت ان اعبد اللہ, امرت ان اعبد اللہ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرو. ان اعبد جو تھا اعبد اللہ, یہ اعبد اللہ بن گئے کیونکہ ان لگا ہے. اسی طرح سے لن, لن نصبر علی طعام واحد, نصبر یہ نصبرو, نصبرہ کے اندر چینج ہو گیا. اسی طرح سے کائی, ذهبت الى المسجد کئی اعبد, اعبد کی جگہ اعبد. پھر لی یا کائی, دخلت فی المسجد لی اعبد, اعبد کی جگہ اعبد. اس طرح اذن, اجتہدت کثیرا هذه المرہ اذن تنجح, یعنی اس دفعہ میں نے بہت محنت کی ہے. اذن تنجح, تب میں کامیاب ہوں. تنجح, تنجحو کے بجائے تنجح. یہاں حتی, یہاں تک کہ اجلس ہنا حتی ارجع, یہاں پر بیٹھو جب تک کہ میں واپس آتا ہوں, یہاں تک کہ میں وہ ارجع, ارجع او کے بجائے ارجع, ارجع. اب حروف جازمۃ المضارع بھی ہیں, یعنی کچھ حروف ایسے ہیں جو اس کو دوسری سٹیٹ کے اندر لے کے آتے ہیں ورب کو, اور وہ جازمۃ المضارع کہلاتے ہیں. یہ ہے لم, لما, لی, لا, ان, من, ما, اینما, اور ان کا معنی ہے نہیں, ابھی تک نہیں, چاہیے کہ, نہ, اگر, جو, جو, جہاں. یعنی لم نہیں, لما ابھی تک نہیں, لی چاہیے کہ, لا نہ, ان اگر, من جو, ما جو, اینما جہاں. اب جو جو یہ آ رہا ہے ایک تو عاقل کے لیے ہوتا ہے, من, ما ہوتا ہے غیر عاقل کے لیے. اب لم کی ایگزامپل لے کے چلتے ہیں. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. علم, اب دیکھ جو سوالیہ ہے لم تعلم, اب تعلم یا تعلمو نہیں ہے, تعلم بالکل سائلنٹ ہے یہ ورب یہاں پر کیونکہ لم آ رہا ہے.
लम्मा अभी तक नहीं, लम्मा अधहब इला मक्का, अधहबा नहीं है, अधहबू नहीं है, अधहब है। फिर लियजलिस, ना तो यजलिसा है ना यजलिसु है, लियजलिस कुल्लु तालिबिन फी हादिहिल गुरफा। फिर ला तुशरिक बिल्लाह, ला तुशरिका, ला तुशरिकू ऐसा नहीं है, ला तुशरिक ये साइलेंट है इसलिए कि ला आ रहा है हरूफ, ये जाज़िमतुल मुदारे वाले हरूफ है। इन तदहब अधहबा, मन यजतहिद यनजह, अब वहां पर यनजह था, यहाँ पर यनजह। मा तफ़अल अफ़अल, ऐनमा तदहब अधहब, ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप अच्छे से देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लाम अमर और लाए नहीं यहाँ पर आ रहा है और ये हुरूफ शरत है। ऊपर वाले जो है लाम अमर है, फिर ये वाला जो ली है जो लाम अमर है ये अमर हुक्म के लिए होता है, और ये ला जो है लाए नहीं है, और ये वाले जो है इन मन मा ये हुरूफ शरत होते हैं। ऊपर वाले जो है ये हुरूफ फ़ेल मुज़ारे को माजी के माने में ले आते हैं। ऊपर वाले जो हुरूफ हैं लम और लम्मा, इनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर लम्मा फ़ेल माजी से पहले आए तो मानी जब होगा। अब शर्तिया जुमले का जवाब शरत भी हालत जज़्म में होता है। अब शर्तिया जुमला कोई होगा उसका जवाब, अब शर्तिया जुमला है उसका जवाब भी तो होता है जवाब शरत, वो भी हालत जज़्म में आता है। एंड हालत नस्ब व जज़्म में फ़ेल मुज़ारे को दो सेगुन जमी मुअन्नस गायब और यहाँ पर ओत हो गया है, और जमी मुअन्नस हाजिर के नून के सिवा बाकी सारे सेगुन के नून हज़फ हो जाते हैं जो नून अराबी कहलाते हैं। बयान किए गए दो सेगुन के नून नून निस्वा कहलाते हैं। तो ये जो आपको बताया गया है यहाँ पर हालत नस्ब जो होता है और हालत जज़्म जो होता है फ़ेल मुज़ारे के अंदर, यहाँ पर उसके दो सेगे बताए गए हैं, जमी मुअन्नस गायब और जमी मुअन्नस हाजिर। इनमें जो नून लगा रहता है उनके सिवा बाकी नून हज़फ हो जाते हैं। ये दो नून जो होते हैं ये नून अराबी कहलाते हैं, बाकी जो होते हैं वो नून निस्वा कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। यदहबूना लन यदहबु, अब ये क्यों हुआ है, यहाँ पर ये लोड हो रही है अभी स्लाइड, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ये एक्चुअल में असली हालत होती है यदहबूना यदहबना तदहबना। फिर हालत नस्ब अगर लन का यूज किया जाए, लन यदहबू लन यदहबना लन तदहबना। एंड अगर लम का यूज किया जाए लम यदहबू लम यदहबना लम तदहबना, इस तरीके से ये यूज होता है। अब ली, ताकि लाम काई और ली चाहिए कि लाम अमर में इस्तेमाल में फ़र्क। लाम अमर को जब पिछले हुरूफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो वो साकिन हो जाता है, लामुल अमर को जो मैंने आपको दिखाया था, जबकि लाम काई साकिन नहीं होता। लाम काई साकिन नहीं होता, लाम अमर साकिन होता है। इनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है इबारत के अंदर। यहाँ पर ये अभी स्लाइड लोड हो रही है, लोड होने तक आप वेट करें, पूरा आपको दिखाया जाएगा होता क्या है एक्चुअल में। अब देखिए क्या है ये यखरुजु और असजुदु, दो यहाँ पर मुज़ारे वर्ब हैं यहाँ पर। अब यखरुजु को अभी हम यहाँ पर लाम अमर और लाम काई का यूज़ करने जा रहे हैं। फल यखरुज कुल्लु वाहिद मिनल गुरफा, फल यखरुज। अब देखिए यहाँ पर लाम अमर को मिलाकर पढ़ा गया तो ये साइलेंट हो गया, मीन्स ये लाम अमर है। असजुदु को दखलतु फिल मस्जिद लि अरका वली असजुदा अमामल मस्जिद। अब ये जो लि यूज हुआ है लि अरका वली असजुदा, ये लामुल अमर नहीं है, लाम साकिन है, ये सॉरी लाम काई है, ये यहाँ पर साइलेंट इसलिए नहीं हुआ। पहली मिसाल में लि लाम अमर है जो साकिन हो जाता है, और दूसरी मिसाल में लाम काई लि है जो साकिन नहीं होती। पहला वाला जाज़िमतुल मुज़ारे जबकि दूसरा वाला नासिबतुल मुज़ारे कहलाता है। अब आपकी समझ में पूरा वाक़या आ गया होगा एक्चुअल में हम सीखने क्या वाले थे। फ़ेल अमर का जवाब भी हालत जज़्म में होता है जो हम बात कर चुके थे। इज्तहिद तंजह, इज्तहिद तू मेहनत कर, तंजह तू ताकि तू कामयाब हो जाए, इसका जवाब है। यानी इज्तहिद तू मेहनत कर, ये हुक्म है, अमर है। तंजा ताकि तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। नीचे जो स्लाइड अभी लोड हो रही है थोड़ा सा ये आपको अगर नजर कम आ रहा है तो इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़िए। शरत का जवाब भी हालत जज़्म में होता है। देखिए इन तकसल
तंदम, अगर तुम कोताही करोगे तंदम, तुम नादिम हो जाओगे। ये शरत जो इन शरत का है जो हमने दिखाया था, इसका जवाब भी जज़म में ही होता है। हालत जज़म और हालत नस्ब में फ़ेल मुज़ारे के सेगों की तब्दील शुदा हालतें। अब देखिए पूरा है, पहला है फ़ेल मुज़ारे, यफ़अल यफ़अला यफ़अलु तफ़अल तफ़अला यफ़अलना तफ़अल तफ़अला तफ़अलु तफ़अली तफ़अला तफ़अलना अफ़अल नफ़अल। ये यहाँ हालत नस्ब के अंदर आया हुआ है और दूसरा जो है हालत नस्ब के अंदर आया हुआ है। अब पहला जो हालत जज़म के अंदर आया हुआ है, सॉरी, दूसरा हालत नस्ब के अंदर आया हुआ है। यफ़अला यफ़अला यफ़अलु तफ़अल तफ़अला तफ़अला यफ़अलना तफ़अला तफ़अला तफ़अलु तफ़अली तफ़अला तफ़अलना अफ़अला नफ़अला, और ये हालत जज़म है और साथ में ये वाला जो है ये हालत नस्ब के अंदर यूज़ हुआ है। जमी मुज़क्कर मुअन्नस व गायब हाजिर के जो 4 से ये अलग किए गए हैं वो नून निस्वा कहलाते हैं, जो रेड कलर से यहाँ पर हाईलाइटेड आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अभी आखिर में सीखने के लिए चंद आयात में दे रहा हूँ। आज कोई भी रूल मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आयात पढ़ के आपको सुनाऊंगा। आपका ये होमवर्क है, आप खुद कीजिएगा। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई क्या करना है और किस तरीके से यूज़ हुआ है वो जानना है। एक तो जाज़मतुल मुज़ारे और नासिबतुल मुज़ारे कहाँ यूज़ हुआ है और किस तरीके से एक्शन करता है। दूसरी जो आयत है रेड कलर से हाईलाइटेड है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम। उसके बाद ब्लू कलर से क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा। फिर उसके बाद रेड कलर से लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामह। फिर उसके बाद ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुक़ारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। उसके बाद फिर से रेड कलर अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। ये आयत पूरी नहीं लिखी जाती बल्कि उसका एक हिस्सा लिखा जाता है समझने के लिए। और एक ब्लू लाइन से आयत आ रही है, क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। और लास्ट में एक आयत रेड कलर से मन युशरिक फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही व मन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनियुन हमीद। इंशाअल्लाह ताला मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।